Hello guys, welcome back to my channel. This is our new video on class 9th physics chapter work and energy, and topic is energy. So basically we have studied two types of energy in class 9th. First one is the potential energy, and second one is the kinetic energy that have to be studied in class 9th, and this video also. So without wasting our time, let's start our video. And if you not subscribe our channel, please subscribe, and you get awesome videos on our channel. And press the like button also if you enjoy this video. So be with us, and keep the video at last, and I promise that you will understand it very finely. So let's start. So before learn what is energy, I'm telling you something, that if a person can do a lot of work, we can say that he was too energetic, or he has too lot of energy. Okay, so a farmer do work in his field, and when we see him, he was looking too energetic and work very hard. So but it is our day life consuming. But in physics, before starting this chapter, I want to tell you that our day to day life is properly and fully different from the physics life. And you cannot relate anything which is from the physics to the daily day to day life. As example, work. As example, work in day to day life. uh, in day to day life, and in physics, day to day and in physics, both have different meaning. in डे टू डे लाइफ, अगर अगर हम मान लीजिए, अगर आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप बुक रखा है यहाँ पे टेबल पे, उससे उठा करके उठाना है आपको, तो ये उसमें भी आपका वर्क हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डे टू डे लाइफ में हो गया. पर फिजिक्स में अगर बात करेंगे वर्क की, तो फिजिक्स में वर्क तब होता है जब जब कोई भी फोर्स अप्लाई हो. अभी हम आगे बात करेंगे उसकी. जब कभी भी फोर्स अप्लाई हो और उसमें क्या हो, मोशन प्रोड्यूस हो, तब जाके वर्क कहलाता है वो फिजिक्स में. तो मैं हल्का सा हिंट दे दिया आपको. अब हम बात करते हैं एनर्जी की. तो इफ़ अ पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, वी कैन से दैट इट वाज टू एनर्जेटिक. बट इन फिजिक्स it was too different from it day to day life. In physics, anything which is able to do work, it possesses energy. Anything. And anything, as example, it is a table, and a book is situated in that. And if I say you that pick the book, so you have to do a work. And in order to do the work, you have to possess energy. And from there we can conclude that anything which is able to do, मतलब जो भी हम कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होता है, पोजेस एनर्जी को पोजेस करता है. मतलब कोई भी वर्क होता है तो उसमें एनर्जी चाहिए, मतलब बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता. ठीक है. एनर्जी इज एबिलिटी टू डू एन वर्क. मतलब कि एनर्जी अगर ना हो तो कोई भी वर्क नहीं हो सकता है. एनर्जी मेन यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है किसी वर्क के लिए. ठीक है. हम आगे बात करते हैं एनर्जी की. नाउ if I tell you that a book is on table, and you have to put it. Okay, so you have to apply energy on that, and when you apply energy, work is complete. Okay, so here we can conclude that amount of work, मतलब कि जितना भी काम किया जाएगा, उसमें जितना भी एनर्जी होगा, वो वर्क जितना किया जाएगा उसके हमेशा बराबर होगा. एज एग्जांपल, जैसे हमने ये बुक को उठाया, तो इसमें हमारा जितना भी वर्क हुआ होगा, मतलब जितना भी वर्क हमने किया होगा इसको उठाने में, और वो किसके बराबर होगा, एनर्जी के. मतलब जितना हमारा एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, उसी के बराबर हमारा वर्क डन हुआ होगा. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी वर्क होता है वो एनर्जी कंज्यूम, मतलब जितना एनर्जी हमारा खर्च होता है उतना ही भी हमारा वर्क होता है. यहाँ से हम ये कह सकते हैं. ठीक है. तो आई होप एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की.
अभी थोड़ा सा और एनर्जी हम जानेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ओके गाइस, अभी हमने जितना भी स्टेटमेंट लिखा है, अगर उसको हम दूसरे वर्ड में लिखना चाहे तो हम एक वर्ड में ये लिख सकते हैं कि वेन एवर वर्क इज डन देन एनर्जी इज कंज्यूम्ड। आप इसे लर्न कर लीजिए। whenever a work is done whenever a work is done then energy is consumed। अगर मैंने इतना सारा स्टेटमेंट लिखा, अगर उसमें से मेन चीज़ अगर आपको नोट करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि whenever वर्क इज़ डन, मतलब कभी भी वर्क होता है तो उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अभी मैंने जितने भी बात की, जैसे हमेशा जितने भी वर्क होगा वो एनर्जी के बराबर होगा, जितना भी काम होगा वो एनर्जी के बराबर होगा, मतलब जितना वर्क डन होगा हमारा हमेशा एनर्जी के बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एनर्जी जो है मतलब कि हमारी जो हमारी जो शक्ति है वो ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। अभी हम आगे बात करेंगे उसकी। ना ये क्रिएट हो सकती है, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम फूड ईट करते हैं, या फिर हम वेजिटेबल से सब्जी, या फिर जो भी फ्रूट हम खाते हैं, उससे हमेशा हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्रिएट होती है। पर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ये क्रिएट हो सकती है, ना ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, अब जो हमारी जो एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इन एनर्जी इट ओनली इंक्लूड द मैग्नीट्यूड। इसके पास हम खाली मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये एनर्जी जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको रिकैप कराना चाहूँ एनर्जी क्या होता है, तो मैं आपको ये फिर से एक बार बता देता हूँ, जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी इज anything we do, it possesses energy. Energy is ability to do work. Okay, as example, to pick a bag from a table, we have to do work. In process to do work, we have to possess energy. Yeah, the amount of energy possessed by the body is equal to the amount of work. When energy is released, okay, from all the conclusion we can say that on only one line, that whenever work is done, it possesses energy. Okay, energy cannot be created, energy cannot be destroyed, energy is scalar quantity, and it only have the magnitude but not had a specific direction. Okay, from here now we move to the topic unit of energy. तो हमारी जो यूनिट होती है, जो हमारा वर्क का जो यूनिट होता है, मतलब वर्क का यूनिट जूल होता है। अभी हमने देखा कि जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है हमारा, वो बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिट होगा वर्क का, वही यूनिट होगा एनर्जी का। इसका भी जूल होता है, ठीक है। अब जूल की अगर हम डिफिनीशन बताना चाहें, डिफिनीशन क्या होता है जूल का, तो हम ये लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन न्यूटन पर मीटर work is said to be 1 joule of energy. We can say that. Okay, so now one thing I have to tell you, in many competitive exam you can see it. So the
द नेम जूल इज गिवन बाय साइंटिस्ट Prescott Joule is given by scientist Prescott Joule. So write it. It may be help for you. Prescott Joule. Prescott Joule. It is a scientist who discovered. It is a British English scientist. Okay. So one important cheese. 1 kilojoule. 1 kilojoule is equals to 1000 joules. ओके वन, ये छोटा सा चीज़ है, ठीक है। और 1 जूल जो होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम खाली काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो अगले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम खाली काइनेटिक एनर्जी को कवर करेंगे और उसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम गाइस मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। आई होप जितने भी एनर्जी के टॉपिक हमने पढ़े होंगे वो सब आपको रिमेन होगा और आप उसे नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी वर्क होता है, तो उसमें क्या क्या लगता है हमारा, कोई भी वर्क होता है तो उसमें क्या लगता है हमारा, एनर्जी लगता है। कोई भी वर्क में क्या क्या आ जाएगा, कोई भी वर्क में ऐसे भी आ जाएगा कि जो वर्क हमारा रेस्ट पे वो होता हो और जो वर्क हमारा मोशन में होता हो, ठीक है। जो वर्क हमारा रेस्ट पे होता हो, जो वर्क हमारा मोशन में रहता हो, जो वर्क हमारा स्टोर रहता हो और जो वर्क हमारा हमेशा रनिंग में होता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। तो जो वर्क हमारा मोशन और रनिंग में होता है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है। अगर जो भी हमारा वर्क होगा वो रेस्ट में होगा या फिर स्टोर्ड वर्क होगा, और या तो हमारा वर्क होगा मोशन में होगा या फिर रनिंग में होगा, या तो हम दौड़ के करेंगे या फिर हमारे जो वर्क होगा वो मोशन में होगा। तो जो भी हमारा वर्क होता है मोशन में या फिर रन में, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्क कह सकते हैं या फिर एनर्जी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल चीज़ बताया मैंने आपको। तो अब हम यहाँ लिख सकते, जैसे अब डिफिनीशन हम इसका लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एनी बॉडी विच इज मूविंग इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी रन कर रही हो, मतलब वो वर्क कर रही है। अगर वो वर्क कर रही है तो कौन सी एनर्जी लेगी, एनर्जी तो लेगी, वो तो पता है हमें, एनर्जी लेगी। पर कौन सी एनर्जी लेगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर मोशन होता है तो वो कौन सी एनर्जी लेती है, काइनेटिक एनर्जी। आपको इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक और डिफिनीशन अदर वर्ड में, कि द एनर्जी to do work in motion. Okay guys, the energy to do work in motion. I hope I am telling you in a very simple way. So अब हम आगे मूव करेंगे और अभी हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस is moving possesses energy, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज मूविंग पोजेसेस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अ रनिंग कार, क्या बोल सकते हैं, a falling stone, all are the examples of kinetic energy because they are in motion, and anything in motion that's said to be kinetic energy. Okay, so अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक
एनर्जी। तो अगर गाइस आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल पे कोई भी फंड हमारा नहीं लग रहा है, पर जब हमारा फंड इस पे अप्लीकेबल होगा तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो हमारा होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स अप्लाइड एंड ट्रेवल डिस्टेंस। ओके, तो अब हमको पता होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, और एस, और जो हमारा एस होगा मतलब डिस्टेंस को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब s को इधर लाएंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 2a। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए विल कैंसिल एंड व्हाट वी गेट, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। So here I want to tell you that in kinetic energy one thing is remain, that in का हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो v होता है मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो हमेशा जीरो होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, v हमेशा उसका जीरो रहता है। v भी कभी कभी सिचुएशन में जीरो होता है, पर मोस्टली u जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m वी स्क्वायर ऐसे रहेगा जीरो, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल गया, एम वी स्क्वायर। और अभी हम, तो गाइस हमें लास्ट में क्या मिल गया था, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हमेशा u जीरो होता है, तो यहाँ जीरो समझिए कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ 1 समझ लीजिए, फार्मूला में मिल गया m अपॉन 2 वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के एंड काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर की। वेलोसिटी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक हमारा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी विथ अस। तो गाइस अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड होंगे काइनेटिक एनर्जी पे। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है, अ बॉडी हैज़ मास 250 kg एंड ट्रेवल्स हाई स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। तो पहले हमें मास गिवन है 250 kg और उसकी स्पीड गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हमारा
1/2 mv², डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 इंटू मास हमें कितना गिवन है 250 इंटू वी कितना गिवन है 100 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे तो अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 150,000 और ये हमारा हो जाएगा जूल्स। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 का पावर 6 10 का पावर 6 ऐसे इतना भी लिख सकते हैं जूल्स। मेरा ब्लूटूथ कहाँ है? सो अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इसमें कह रहा है कि हाउ फार शुड अ मास ऑफ 50 kg सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी 625। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसका मास अगर हम ले ले 50 kg तो उस पर कितना वाट शुड 50 kg हाउ फार, मतलब वो कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी हमें फाइंड करना है और इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 225 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास हमें गिवन है कितना 50 इंटू वी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 25 हो जाएगा तो 625 इज इक्वल्स टू 25 इंटू वी का स्क्वायर। तो अब हम इसको इधर भेजेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स 625/25 5 एंड 125 and 25 v square is equals to 25. So v square we get 25. It means that the velocity acquired by it is now v square and v is equals to under root 25 equals to 5. Velocity will be 5 meter per second. So it will solve. I hope that you all understand kinetic energy and you are also able to solve some numericals based on it. So thanks for watching. Keep learning.